اردو اکیڈمی دہلی کے سیکرٹری جناب شریف الحسن نقوی اردو ادیبوں کو انعامات و اعزازات سے نوازنے، ان کے ہلکے پھلکے مضامین کے عوض بھاری بھرکم معاوضے ادا کرنے اور انہیں مرغن غذائیں کھلانے کے لیے ہندوستان کی شہرت تو رکھتے ہی ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ بعض ادیبوں کو آزمائش سے بھی گزار دیتے ہیں۔ آج کے اردو ادیب کا شعرۂ امتیاز یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو تو آزمائش سے گزرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، لیکن خود کو آزمائش سے گزارنے کی کتاب نہیں لا سکتا۔ 4-5 دن پہلے نقوی صاحب ملے تو ہمیشہ کی طرح اجلت میں تھے اور اتفاق سے میں بھی کچھ کم اجلت میں نہیں تھا۔ بولے ہم لوگ اندر کمار گجرال صاحب کو استقبالیہ دے رہے ہیں، اس موقع پر آپ کو گجرال صاحب کا خارا پڑ رہا ہوں۔ میں نے حامی کر لی۔ دوسرے دن اس زمن میں نقوی صاحب کا سرکاری مراسلہ آیا تو سوچنے لگا کہ اجلت اور غفلت میں نے یہ کیا وعدہ کر دیا۔ میں تو گجرال صاحب کا صرف ایک ادنا سا عقیدت مند ہوں اور وہ میرے محسن ہیں، مانا میں نگاہی کرتا ہوں، لیکن اتنا احسان فراموش بھی نہیں ہوں کہ اپنے محسنوں کے خاکے لکھنے لگوں۔ میری زندگی میں 2-4 ہستیاں ایسی رہی ہیں جن کے بارے میں جب بھی کچھ لکھنے کے لیے قلم اٹھاتا ہوں تو سر عقیدت سے جھک جاتا ہے اور مجھ سے زیادہ میرے قلم کو پسینہ آنے لگتا ہے۔ گجرال صاحب ان 2-4 ہستیوں میں شامل ہیں۔ گجرال صاحب کے بارے میں جب بھی کچھ سوچتا ہوں تو نہ جانے کیوں مجھے کچھ پرانے عربستان کا خیال آتا ہے جس میں تیل ابھی دریافت نہیں ہوا تھا اور عربوں نے دوسری قوموں کا تیل نکالنا شروع نہیں کیا تھا۔ اس زمانے کے ایک عرابی سے کسی نے پوچھا تم کھاتے کیا ہو؟ عرابی نے جواب دیا اونٹ۔ پوچھا پیتے کیا ہو؟ کہا اونٹ۔ اوڑھتے کیا ہو؟ جواب ملا اونٹ۔ بچھاتے کیا ہو؟ اونٹ۔ پوچھا سواری کیا ہے؟ جواب ملا اونٹ۔ سوال کرنے والا پریشان ہو کر کہنے لگا یہ تم نے کیا اونٹ کی رٹ لگا رکھی ہے؟ عرابی بولا حضور اونٹ کا گوشت کھاتا ہوں، اونٹنی کا دودھ پیتا ہوں، اونٹ کی کھال کے کپڑے پہنتا ہوں، اونٹ کی کھال کو اوڑھتا اور بچھاتا ہوں، اونٹ پر سواری کرتا ہوں۔ اونٹ ہی میری دنیا اور میری زندگی۔ اب اگر آج کوئی میرے بارے میں چند نجی سوالات کر بیٹھے تو میرے جوابات بھی کچھ اسی طرح کے ہوں گے۔ مثلاً اگر مجھ سے پوچھا جائے تمہیں حیدرآباد سے دہلی کس نے بلایا تو میرا جواب ہوگا اندر کمار گجرال۔ اگر سوال یہ ہو کہ تمہیں دہلی میں سب سے پہلے سرکاری مکان کس نے الاٹ کیا تو میرا جواب ہوگا اندر کمار گجرال۔ تمہارے بیٹے کو انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے سوویت یونین کس نے بھجوایا میرا جواب ہوگا اندر کمار گجرال۔ نگاروں کی ایک کانفرنس میں تمہارے بعد بیرونی نگاروں کو انڈین کونسل فار کلچرل ریلیشنز کا مہمان کس نے بنایا تو میرا جواب ہوگا اندر کمار گجرال۔ حضرات اس طرح کے سوالات کی فہرست یا یوں کہیے کہ گجرال صاحب کے احسانات کی فہرست کافی طویل ہے، لیکن میں نے صرف یہاں وہی سوالات دیکھ لیے ہیں جن کے جوابات شاید خود گجرال صاحب کو بھی معلوم ہیں۔ ان کے وہ احسانات اس فہرست میں شامل نہیں ہیں جو انہوں نے مجھ پر کیے، مگر میں نے بکمال ہوشیاری ان کی اطلاع انہیں ہونے دی۔ مثال کے طور پر 3 سال پہلے جب میں سوویت یونین گیا تو انڈین ایمبیسی کے ایک اعلیٰ عہدیدار سے باتوں میں گجرال صاحب کے دورے سفارت کا ذکر آیا۔ عہدیدار نے پوچھا آپ گجرال صاحب کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ارے صاحب آپ جاننے کی بات کرتے ہیں، ہمارے کو ان سے بڑے خاص مراسم ہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ اس عہدیدار نے ہم پر لطف و کرم کے دریا بہا دیے۔ جتنے دن سوویت یونین میں رہے وہ بغل میں سب خالی دعوے ہمارے آگے پیچھے گھومتے رہے، ادھر ہم نے زمین پر قدم رکھا اور ادھر انہوں نے اسے دکھائے۔ ان کی نوازشیں جب گجرال صاحب سے ہمارے فرضی مراسم کے تناسب سے بھی کچھ زیادہ بڑھنے لگی تو ایک دن میں نے ان کے دریائے لطف و کرم کے آگے باندھ باندھنے کی کوشش کی تھی۔ کبھی کبھی آدمی کا ضمیر بھی تو جاگ جاتا ہے، مگر وہ راضی نہ ہوتے۔ بولے آپ گجرال صاحب کے اتنے قریبی آدمی ہیں اور ہم آپ کا اتنا بھی خیال نہ کریں۔ ایسے کئی احسانات ہیں جو گجرال صاحب نے ان پر کیے، مگر میں نے انہیں ان سے لا علمی رکھا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ گجرال صاحب جس تحریر کے پروردہ ہیں اس میں احسان کرنے والے کی نظریں کبھی اونچی نہیں بلکہ نیچی ہی رہتی ہیں۔ عجیب و غریب تحریر تھی تبھی تو میٹھی چلی جا رہی ہے۔ حضرات سب تو یہ ہے کہ شخصی طور پر میرے لیے گجرال صاحب کی وہی حیثیت ہے جو پرانے عرابی کے لیے اونٹ کی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عرابی پر اونٹ کے اتنے احسانات کے باوجود خود عرابی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کا اونٹ کس قدر بیٹھے گا، لیکن میں اس طرح جانتا ہوں کہ گجرال صاحب کے عقیدے اور نظریے کا اونٹ جب بھی بیٹھے گا تو وہ بائیں کروٹ کی بیٹھے گا، رواداری، سیکولرزم اور انصاف دوستی کے ذریعے بیٹھے گا۔ مجھے اس وقت آجہانی کرشن چندر کی یاد بے ساختہ یاد آ رہی ہے کیونکہ انہیں کی بات پر میں پہلے گجرال صاحب سے ملا تھا۔ کرشن چندر مجھے بہت عزیز رکھتے تھے اور یہ انہیں کی خواہش تھی
कि मैं हैदराबाद से निकल कर या बम्बई में आबाद हो जाऊँ या दिल्ली। इन दोनों गुजराल साहब मरकजी वजीर इत्तलात थे। कृष्ण जी ने मेरे बारे में गुजराल साहब को 2000 जबरदस्त सिफारिशी खत लिखे और जब हुकूमत हिंद ने उर्दू की तरजीह को इशात के लिए कमेटी कायम की जिसके सदर नशीन गुजराल साहब थे, तो एक दिन कमेटी के दफ्तर से मेरे नाम मुरासला आया कि मियाँ दिल्ली चले आओ और कमेटी की रिपोर्ट लिखने में हुकूमत का हाथ पकड़ा रहा। ये वही तारीखी कमेटी है जिसका नाम कमेटी फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू था, मगर बाद में इसने गुजरात कमेटी की हैसियत से शोहरत पाई। यूँ समझिए कि ये नाम इस कमेटी का तकल्लुल बन गया। जी तो चाहता है कि गुजरात साहब की बजाय इस कमेटी का खाका लिखा जाए। कमेटियाँ तो आए दिन बनती रहती हैं और कमेटियाँ बनाई भी इसलिए जाती हैं कि जिस मामले के लिए कमेटी बनाई जा रही है उस मामले को लटकाया जाए। अगर कमेटी से मामला न लटक सके तो नई कमेटियाँ बनाती जाए, मगर गुजरात कमेटी वाहिद कमेटी जो मामले को लटकाने के बजाय उससे निपटाना चाहती और उसकी इस कोशिश में कमेटी के सदर नशीन की नीयत को बड़ा था। और दुनिया जानती है कि जब इस कमेटी ने उर्दू के मामले को निपटाने के लिए एक जामे रिपोर्ट पेश कर दी तो अरबाब इक़्तिदार में खलबली से बच गई और उन्होंने सोचा कि अगर कमेटी ने अपने क़याम के असल मकसद से रूगर्दानी करते हुए रिपोर्ट पेश ही कर दी है तो क्यों ना इस रिपोर्ट को ही लटका दिया जाए। चुनांचे तब से अब तक गुजरात कमेटी की रिपोर्ट लटकती चली आ रही है। 15 वर्ष हो गए इसे लटकते हुए। बहुत कम रिपोर्टें ऐसी होंगी जिन्होंने लटकने का इतना लंबा रिकॉर्ड कायम किया। इस रिपोर्ट की सब जाने का इससे बड़ा और क्या हो सकता है। अरबाब इक़्तिदार ने हमेशा इस रिपोर्ट को ईद के शेरवानी के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की है। जब भी मुनासिब मौका आता है तो इस रिपोर्ट को झाड़ फोड़ कर बक्से में से निकाला जाता है। ईद की शेरवानी और गुजरात कमेटी में फर्क सिर्फ इतना है कि ईद की शेरवानी खुशी के मौके पर निकाली जाती है और गुजरात कमेटी की रिपोर्ट को बुरे वक्त या आड़े वक्त में निकाला जाता है। गुजरात साहब ने खुद अपने एक इंटरव्यू में उन हालात को बयान किया है जिनमें किस तरह इस कमेटी की सिफारिशात को लैतुलाल में डाला गया। मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कहना चाहता, इतना जरूर कहना चाहूँगा कि गुजरात कमेटी अब अपनी मखसूस शोहरत के बायस जरूर बसल के तौर पर भी इस्तेमाल होने लगी। किस तरह इस्तेमाल हो रही है उसके लिए चंद जुमले मिलाया जा सकता है। एक जमाना था जब हाथों पहले तुम्हारी याद आती थी, अब यह हाल है कि गुजरात कमेटी की तरह याद आती। बेटी तुम्हारे वालिदैन ने जहर में एक दिन तक नहीं किया, कुछ देने की सकत नहीं थी तो गुजरात कमेटी की रिपोर्ट ही दे देते जिस पर अमल आवरी की आज लगाए बैठे तो रहते। यार बेटी तुम्हारे वालिदैन ने जहर में एक दिन तक नहीं किया, कुछ देने की सकत नहीं थी तो गुजरात कमेटी की रिपोर्ट ही दे देते जिस पर अमल आवरी की आज लगाए बैठे तो रहते। भैया वो जो मैंने 10 साल पहले तुम्हें खर्च किया था उसे अब वापस हो जाए। इससे ज़्यादा गुजरात कमेटी नहीं चलती। गुजरात कमेटी की कोई हद होती है। हजरात गुजरात कमेटी की याद आ रही है तो मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब इस रिपोर्ट की तैयारी में हम जैसों ने दिन रात काम किया था। अली जवाद इसके सेक्रेटरी से मेरा ताल्लुक रिसर्च के शोबे से था। शायद ही कोई दिन ऐसा गया हो जब हमने रात देर तक दफ्तर में काम नहीं किया हो। इसकी वजह ये नहीं थी कि हमें काम करने का शौक था, जो भी उर्दू वालों में भला ऐसा शौक नहीं पैदा हो सकता है। शरीफुल हसन नकवी जैसे उससे काम करने वाले लोग उर्दू में गलती से पैदा हो जाते हैं। हमारे मजबूरन काम करने की असल वजह ये थी कि गुजराल साहब इस कमेटी के सदर थे और वो इस काम को पूरी मुस्तैदी के साथ जल्द अज जल्द मुकम्मल करना चाहते। रिपोर्ट के एक एक बात के सैकड़ों मसौदे तैयार होते थे और हर मसौदे की एक एक सदर गुजराल साहब की नजर से गुजरती। जगह जगह गुजराल साहब खुद अपने हाथ से मसौदों में तरमीम करते थे। कमेटी ने हिंदुस्तान के कोने कोने का दौरा किया। जहाँ जहाँ भी उर्दू के मौजूद होने का अनुमान होता था वहाँ ये कमेटी पहुँच जाती थी। हर जगह गुजराल साहब मौजूद होते थे। छोटे से छोटे मामले की बड़ी से बड़ी तफसील हो जाते थे। इस मौके से फायदा उठाते हुए मैं उर्दू वालों को ये बताना भी जरूरी समझता हूँ कि गुजराल साहब ने उर्दू के हर मामले को सिर्फ सिफारिश के तौर पर रिपोर्ट में पेश करने पर ही इस्तेफा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने खुसूसी इख्तियारात और शख्सी रसूख का इस्तेमाल करते हुए रिपोर्ट की पेशकशी से बहुत पहले कई रियासती हुकूमतों को पाबंद किया कि वो उर्दू के फरोग के लिए खुसूसी और अमली इक़दाम करें। उन्होंने रियासतों के चीफ मिनिस्टरों को बेशुमार खुसूसी दिए। चुनाचे गुजराल साहब का एक शख्सी कारनामा है कि आज हिंदुस्तान की कई रियासतों में उर्दू अकेडमियाँ हैं। रेडियो में उर्दू प्रोग्रामों का रस बढ़ाया गया। पहली मरतबा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जैसे कौमी इदारे को पाबंद किया गया कि वो हिंदी और अंग्रेजी के अलावा उर्दू में भी निसाबी किताबें उठाएं।
मुझे लगता है तो गुजराल साहब को जैसे अंदाजा था कि इस कमेटी की रिपोर्ट के साथ बाद में क्या किया जाएगा, इसीलिए उन्होंने इन मामलों को रिपोर्ट का हिस्सा बनाने के साथ साथ इन पर फौरी अमल आवर की जाने से खत्म होता है। अगर गुजराल साहब ने दूरअंदेशी से काम लेकर ये इकदाम न किए होते तो ये मामले की कमेटी की दीगर सिफारिशात की तरह लटकते रह जाए। हजरात, गुजराल कमेटी का अध्यक्ष तवील हो गया है, लेकिन गुजराल साहब का जब भी जिक्र होगा तो गुजराल कमेटी का अध्यक्ष तो आएगा है। कहा जापान का डर है, कहा जापान तो होगा वाला मामला है। मैं गुजराल कमेटी की रिपोर्ट को सिर्फ हुकूमत की एक रिपोर्ट नहीं समझता, बल्कि इसे उर्दू के लिए गुजराल साहब की शख्सी मोहब्बत का एक दस्तावेजी सबूत तस्वीर करता हूँ। उर्दू गुजराल साहब के लिए एक दावे निगाह है, जिंदगी को बरतने के सलीके का नाम है। उर्दू उनके मिजाज का सबसे रोशन तरीका है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, आजादी कृष्णचंद्र की मारिफत में गुजराल साहब से मिला था, यह हमारा काफी था। लेकिन जब मैं दिल्ली आया तो मेरे दीगर कर्म फरमाओं ने भी गुजराल साहब को मेरे बारे में कहना शुरू कर दिया। बन्ने भाई मरहूम सज्जाद रहीम ने एक दिन मुझसे कहा, मैंने इंद्र कुमार गुजराल से कहा है कि तुम्हारा ख्याल रखें। मैंने कहा, बन्ने भाई ये आपने क्या मदद किया? कृष्ण जी गुजराल साहब को मेरा ख्याल रखने के बारे में कई बार कह चुके हैं और अंदेशा है कि वो आगे भी कहते रहेंगे। अभी परसों की बात है, आदित्य अली खान भी उन्हें यही बात कह चुके हैं। बिरला कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब ने सोचा कि वो क्यों भला इस मामले में पीछे रहे, तो वो भी यही बात कह चुके हैं। गुजराल साहब जब खुद मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं तो आप गुजरात क्यों मेरे हवाले से उनके ख्याल से पीछे पड़ गए? कहीं वो नाराज ना हो गए। बन्ने भाई कुछ देर सोचे रहे, फिर अपनी मखसूस मासूमियत में थोड़ी सी तशवीश को शामिल करते हुए बोले, तुम ठीक है, तुमने मुझे पहले ही क्यों ना बताया कि ये लोग भी तुम्हारे बारे में मुझे कह रहे हैं? मैंने कहा ये लोग मुझसे पूछकर थोड़ा ही कह रहे हैं, उनके कहने में आमद है और नहीं। अब मैंने भला आपसे थोड़ी कहा था कि मेरे बारे में कुछ कहें, जैसे आपने कह दिया उन लोगों ने कह दिया। बन्ने भाई ने पूरी से कहा, तुम परेशान न हो, गुजराल जानते हैं कि मौजूदा अरब इक़्तिदार में वही एक ऐसे शख्स है जिनसे उर्दू वाले जब चाहें और जो चाहें तो कह सकते हैं। इस पर भी अगर तुम फिक्रमंद हो तो मैं कल ही जाकर उनसे कहता हूँ कि मैंने तुम्हारा ख्याल रखने के लिए उनसे जो कुछ कहा था वो अपने तौर पर कहा, तुम्हारे कहने से नहीं कहा। आप चाहें तो ख्याल रखें और न चाहें तो न रखें। और मैंने बड़ी मिन्नत समाजत करके बन्ने भाई को इस ख्याल को बताया। उर्दू के हर बड़े अदीब और उर्दू की हर अच्छी तहरीक से गुजराल साहब का जाती ताल्लुक रहा है। पाकिस्तान से कोई भी उर्दू अदीब आता है तो वो गुजराल साहब से जरूर मिलता है। पंजाब और उर्दू उनकी खास कमजोरियाँ है। मैं गुजराल साहब की इज्जत सिर्फ इसलिए नहीं करता कि वो एक अच्छे सियासतदान है, बल्कि इसलिए करता हूँ कि वो सियासतदान से बहुत आगे की चीज़ है। वो पहले मुदब्बिर और दानिश्वर है और बाद में सियासतदान है। इसीलिए तो उनकी कही हुई बात में माना और नीयत को तलाश करने में कोई दुश्वारी नहीं। वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसके सही मान और मफहूम को जहन में रखकर इस्तेमाल करते हैं। दीगर सियासतदानों की तरह नहीं कि लफ्ज़ों के माने तक नहीं जानते, लेकिन उनका बेदरेज इस्तेमाल करके चले जाते हैं। यही वजह है कि गुजराल साहब अदीबों, फनकारों और दानिशवरों की सोबत में अपने आप को ज़्यादा मुतमईन और मसरूर महसूस करते हैं। उनकी बेगम मोहतरमा शीला गुजराल पंजाबी और हिंदी की मशहूर शायरा है। निहायत रखरखाव के कानून में एक मकूला है कि हर बड़े आदमी की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बशर्ते कि ये औरत भी बड़े आदमी को बड़ा आदमी है। मोहतरमा शीला गुजराल के हुस्न सुलूक और उनकी सलीका मबनी को देखकर इस मकूले की सदाकत पर ईमान लाना पड़ता है। ये मोहतरमा शीला गुजराल की बड़ाई नहीं तो और क्या है कि वो भी गुजराल साहब को बड़ा आदमी समझती है। गुजराल साहब न सिर्फ बड़े दानिशवर और सियासतदान हैं, बल्कि बहुत बड़े अदीब हैं। पिछले 4-5 वर्षों में जब उन्हें किसी कदर फरागत नसीब थी तो वो हिंदुस्तान के रसायल के अलावा उर्दू के रोजनामा सियासत के लिए पाबंदी से मज़ाहिर लिखा करते थे। हजरात, पिछले 17 वर्षों में मैंने गुजराल साहब के कई दौर देखे हैं। मरकजी वज़ीर इत्तलाआत के वज़ीर वाला वो दौर भी देखा है जब उनके चेहरे पर लेने मार का दाढ़ी नहीं थी। मैंने वो दौर भी देखा है जब वो बताया रिश्तेदार की कुर्सी पर नहीं थे, लेकिन उनके मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज़ बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने वालों के लिए एक हुक्म का दर्जा रखता था। इसीलिए तो मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि कुर्सी पर बैठकर कहा जाने वाला लफ्ज़ खुद अपने में कोई अहमियत नहीं रखता। अहमियत इस बात की होती है कि ये लफ्ज़ किसके मुँह से अदा हो रहा है। मुझे याद है कि मेरे और मेरे पास रहबार के कई मुश्किल काम गुजराल साहब के उस वक्त के लफ्ज़ों से पूरे हो गए थे जब वो इक़्तिदार की कुर्सी पर गुजराल साहब थे। गुजराल साहब का शख्सी इक़्तिदार किसी कुर्सी का मजमून मिन्नत कभी भी नहीं रहा। यूँ कहिए कि उनका नाम ही एक मनसब जलीला है। इस नाम को यौमी तौक़ीर अता नहीं हो गई, बल्कि इसकी
गुजरात साहब की 70 साल जिंदगी का एक दियानतदाराना और बेदाग दैनिक सफर का करना है। 70 बरस के एक लम्हे को सच्चाई के साथ जीना और हर आजमाइश से कामयाब पूर्ण होकर निकलना कोई मामूली बात नहीं है। हजरात, मेरे पास कहने को बहुत सी बातें हैं, लेकिन मुझे वक्त की तंगी का एहसास है। आखिर में इतना ही कहूँगा कि गुजरात साहब अब सिर्फ एक फर्द नहीं बैठे, बल्कि हमारे कल्चर की बेहतरीन रिवायात की एक अलामत बन गए। उर्दू वालों के एतमाद का नाम इंद्र कुमार गुजराल है। सेकुलरिज्म का हिंदुस्तानी तर्जुमा इंद्र कुमार गुजराल है। इंसान दोस्ती और रवादारी को इंद्र कुमार गुजराल भी कहते हैं। मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मौजूदा पुराने हालात को देखकर मैं बहुत ज़्यादा पहुँच जाता हूँ। दिल्ली की थके खाती हुई और बिल्कुल पड़ती जिंदगी से मैं मायूस हो जाता हूँ, तो ऐसे में अचानक न जाने क्यों गुजरात साहब का ख्याल आ जाता है। मैं सोचता हूँ ये क्या काम है कि इस पूरा शोक और संगीन दौर में गुजरात साहब जैसी जो एक शख्सियतें हमारे बीच मौजूद है, इस एहसास के साथ ही मैं इत्मीनान का एक लंबा सांस लेता हूँ। और मेरे लिए इत्मीनान के इसी लंबे सांस का नाम इंद्र कुमार गुजराल है। मत सह लेने जानो, फिरता है फलक पर हो, तब आग के पर्दे इंसान